Assalamu alaikum, dear students. You are welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss first chapter of your textbook, first lesson of your textbook, that is Footprints Without Fate. This is actually a science fiction, science story written by H.G. Wells. Before discussing the story, let us read a short introduction about how this H.G. Wells, the author of this lesson, and after that we will discuss some paragraphs of this story also. Actually, this story is a part of a novel. The name of that novel is The Invisible Man, that was published in 1897. 1897 में एक नावल पब्लिश हुई थी H.G. वेल्स की, जिसका नाम था द इनविजिबल मैन. उसी से ये एक चैप्टर लिया गया है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस a brief introduction about H.G. Wells. Herbert George Wells was born on 21st September 1866 and died on 13th August 1946. यूजुअली नोन एज H.G. वेल्स. शार्ट में उसको कहा जाता है H.G. वेल्स, लेकिन फुल नेम है उसका हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स. was an English author, a very famous English author rather, best known for his work in the science fiction. साइंस फिक्शन में उसने बहुत सी कहानियाँ लिखी है, बहुत से नावल्स लिखी है. उसके लिए ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही मशहूर है. Wells and Jules Vernier are often referred to as the father of science fiction. इन दोनों ऑथर्स को, एक तो H.G. वेल्स और जूल्स वर्नियर, उनको फादर ऑफ साइंस फिक्शन भी कहा जाता है. वेल्स वाज एन आउटस्पोकन हम उस आदमी को कहते हैं one who is saying what one feels or thinks, one who says what he feels or thinks, जो बिल्कुल मुंह पर बात कहे, जो बिल्कुल सच बात कहे, चाहे कोई नाराज हो या कोई खुश हो, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. आउटस्पोकन पर्सन जिसको हम कहते हैं. सोशलिस्ट हम उस पर्सन को कहते हैं वन हु बिलीव्स दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड द wealth or money should be equally distributed among all. उसको हम सोशलिस्ट कहते हैं, सोशलिस्ट पर्सन. थर्ड वन, pacifist is a person one who is against war or favors peace, जो बिल्कुल वार के खिलाफ हो, किसी जंग के खिलाफ हो और पीस को तरजीह देता है, अमन को तरजीह देता है. So the Wells, H.G. Wells, he was an outspoken person, he was a socialist, he was a pacifist, and his later works became increasingly political and didactic. And he wrote about political issues of his days. पॉलिटिकल इश्यूज़ पर भी बहुत से उन्होंने किताबें लिखी है और डाइडैक्टिक पर भी उसने बहुत कुछ लिखा है. डाइडैक्टिक हम उस बुक को कहते हैं दैट टीचेस अस मोरली, जो हमें इखलाक सिखाता है, जो हमें इखलाक की तरबियत हमारी करता है, उसको हम डाइडैक्टिक कहते हैं. His middle period novels, that is 1900 to 1920, were more realistic. Means that accepts the facts of situation, जो बिल्कुल सच्ची बात कहे, सच्ची बात दिखाए, सच्ची बात लिखे, सच्ची बात हम तक पहुंचाए, उसी को हम रियलिस्टिक नावल कहते हैं, रियलिस्टिक बुक कहते हैं. दे कवर्ड लोअर मिडिल क्लास लाइफ के बारे में उन्होंने ज़्यादा लिखा है. द हिस्ट्री ऑफ मिस्टर पोली
ایک اس کی ایک ناول ہے. اینڈ دا نیو وومین اینڈ دا سفراگیٹس این وورونیکا، یہ بھی اس کی ایک کتاب ہے. He was a prolific writer, one who has written a lot of stories, a lot of books, جس کو ہم prolific writer کہتے ہیں. In many genres، بہت سی ناولز میں، پوئٹری میں، ناولز میں، اور بہت سی جو جانر ہے اس میں تمام میں انہوں نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے. انکلوڈنگ کنٹمپرری ناولز میں بھی، ہسٹری میں بھی، اینڈ سوشل کمنٹری میں بھی. That means commentary regarding different topics of society. The Time Machine is considered as an important work in science fiction. اس کی ایک ناول جو ہے اس کا نام ہے The Time Machine. یہ سائنس فکشن میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ورک، بہت ہی امپورٹنٹ بک سمجھی جاتی ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ناول سمجھی جاتی ہے. Wells' family lived in a financial crunch، کیونکہ یہ زیادہ امیر نہیں تھا جب یہ آتھر نہیں تھا، تب اس سے پہلے جو اس کی لائف تھی یہ بہت غریب آدمی تھا. فائنانشیل کرنچ، ان ڈیفیکلٹ سچویشن جس کو ہم کہتے ہیں. دا فیملی انسٹڈ sought to place their boys as apprentices to various occupations. ان کا جو خاندان تھا، اس کے جو بچے تھے، اس کے بھائی جو تھے، انہوں نے بہت سے کام کیے ہیں ایز اپرینٹسز. اپرینٹسز مینز اے پرسن ہو ورکس آن اے لو پے ٹو لرن دا سکل، جو کسی ایکسپرٹ کے پاس جاتا ہے کوئی ہنر سیکھنے کے لیے، کوئی کام سیکھنے کے لیے. انہوں نے بھی بہت سے کام کیے ہیں. From 1880 to 1883, Wells had an unhappy apprenticeship as a draper at the South Sea Drapery Emporium. یہ ایک کلوتھ فیکٹری میں بھی کام کرتا تھا. امپوریم ہم منڈی کو کہہ سکتے ہیں، تجارتی مرکز یا بڑی دکان کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. وہاں یہ کام کرتا تھا. وہاں اس کا جو یہ مالک تھے اس کے ساتھ اس کی نہیں بنتی تھی. ان ہیپی اپرینٹس، وہاں بہت وہ خوش نہیں تھا یہ کام کرتے کرتے. جس کا نام تھا، اس فیکٹری کا نام تھا ساؤتھ سی ڈراپری ایمپوریم، ہائیڈیز. His experiences were later used as inspiration for his novels The Wheels of Chance and Kips. 2 ناولز انہوں نے بعد میں لکھی ہے. ان میں اس جو اپرینٹشپ کا ذکر ہے، انسپائریشن اس کو مل گیا، جو خواہش پیدا ہوئی، اور انہوں نے اس ایپیسوڈ آف لائف جو اس نے وہ کچھ ٹائم وہاں گزارا ہے، وہ ٹائم اس ناول میں بھی لکھا ہے. اس کے بارے میں اس نے لکھا ہے اس ناول میں. which describe the life of a draper's appearance. اس میں ایک ڈریپر کا بھی ذکر کیا گیا ہے. as well as being critiques of the world's distribution of wealth. اور ان 2 ناولوں میں انہوں نے بالکل خلاف لکھا ہے. یہ جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، کچھ ہی لوگوں کے پاس ہے دنیا کی تمام دولت، باقی لوگ بہت ہی غریب ہے، اس کے خلاف بھی لکھا ہے، جس کو ہم نے اوپر جس کو کہتے ہیں سوشلسٹ کہا تھا. سوشلسٹ ناولز. This was a brief introduction about H.G. Wells. Now about this story. میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا ہے کہ یہ کہانی جو ہے، یہ چیپٹر جو ہے، یہ ایک بڑی بک سے، ایک بڑی ناول سے لیا گیا ہے جس کا نام تھا دا انویزیبل مین. دیٹ ناول واز ریٹن ان 1897. یہ ایک سائنٹیفک فکشن ہے، ایک سائنٹیفک سٹوری ہے جس میں سائنس کے بارے میں ایک کہانی ہے. وہ ہم آگے پڑھیں گے. اسی سے یہ ایک ایپیسوڈ لیا گیا ہے. Now about this story. Can a man become invisible? کیا ایک انسان invisible بن سکتا ہے جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے؟ This is the story of a scientist who discovers how to make himself
इनविजिबल। इस कहानी में एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, लिखा गया है, जो अपने आप को इनविजिबल बनाता है। ही इज़ ए होमलेस वंडरर, उसका कोई घर नहीं है, वो सिर्फ मारा मारा फिरता है यहाँ से वहाँ, बगैर किसी मकसद के उधर उधर घूमता है। विदाउट क्लोथ्स एंड विदाउट मनी, न उसके पास कपड़े हैं, न उसके पास मनी है, पैसा है। डज ही वर्क इन हिज लेबोरेटरी और डज ही वंडर अबाउट द कंट्री साइड। जब वो ये इनविजिबल बन जाता है, फिर वो क्या करता है? क्या वो लेबोरेटरी में ही रहता है? क्या वो इधर उधर घूमता है? कंट्री साइड में, गाँव में, दूर दूर इलाकों में घूमता रहता है। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट द क्यूरियस एपिसोड दैट occur in the story. Let us read the story to find out what happens with him. क्या होता है उसके साथ जब वो अपने आप को इनविजिबल बनाता है। इस कहानी में इसी का जिक्र है। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a bare feet. ये कहानी शुरू होती है जब दो लड़के अचानक एक जो पाँव के निशान देखते हैं, मड मीन्स जो गीली मिट्टी होती है, उसी के जो निशान पड़ते हैं सीढ़ी पर, देखते हैं इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट, बिल्कुल नंगे पैरों के निशान। व्हाट वाज ए बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस। वो सोचते हैं कि ये निशान ये है यहाँ कैसे है, क्यों है? कोई आदमी बियर फिटेड, मिट्टी में भरे हुए पानी लेकर यहाँ क्यों आया होगा? इन द मिडल ऑफ लंदन, बिल्कुल लंदन के बीचों बीच, जो बहुत ही बड़ा फेमस शहर है। एंड वेयर वाज द मैन, लेकिन मैन है कहाँ जिसने निशान लगाए हैं, जिसके निशान है, वो आदमी है कहाँ? एज द गेज्ड a remarkable sight met their eyes. वो यही सोच रहे थे, वो यही देख रहे थे। अचानक एक और साइट, एक और नज़ारा उन्होंने देखा। वो नज़ारा क्या था? A fresh footmark appeared from nowhere. अचानक दो और निशान बन गई, एक और निशान बन गया। फ्रेश फुटमार्क, एक और पाँव का निशान बन गया उनके सामने फ्रॉम नोवेयर, लेकिन आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉरवर्ड, फिर अचानक ये फुटप्रिंट्स बनते गई, उनके आगे आगे बनते गई, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। डिसेंडिंग द स्टेप्स, ये जो सीढ़ियाँ थी, ये जो स्टेप्स थे, डिसेंड हो रहे थे, दैट मीन्स उन सीढ़ियों से कोई उतर रहा था। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, अब वो बिल्कुल गली में चल रहा था, लेकिन निशान बन रहे थे। पहले निशान बहुत क्लियर थे, अब थोड़ा फेंट हो रहे थे। द बॉयज गॉट फैसिनेटेड एंड फॉलोड। फैसिनेटेड इसको हम कहते हैं कशिश करना, उनको अपनी तरफ कशिश कर रहा था ये जो नज़ारा था। वन आफ्टर अनदर the boys got fascinated and followed. वो इन स्टेप्स के, वो इन निशानों के पीछे पीछे चलते गए until the muddy impressions became fainter and fainter. जब तक ये निशान बिल्कुल फेंट हो गए, कम हो गए। they were not clear now. बिल्कुल कम 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 उनका जो क्लियरिटी वो कम हो रही थी। एंड एट लॉस्ट डिसअपियर्ड ऑलटुगेदर, और फिर अचानक वो गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल एनफ। ये जो राज था, ये जो एक मिस्ट्री थी, एक को राज की बात थी, इट वॉज सिंपल। क्या सिंपल था? द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. एक्चुअली ये जो दो बच्चे थे, ये जो दो चिल्ड्रन थे, ये एक साइंटिस्ट के पीछे भाग रहे थे। bewildered मीन्स confused,
ये जो कंफ्यूज्ड बच्चे थे, ये जो सरप्राइज्ड बच्चे थे, ये एक साइंटिस्ट के पीछे भाग रहे थे, साइंटिस्ट के साइंसदान के पीछे जा रहे थे, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने हाल ही में एक ऐसी दवाई बनाई थी, ऐसा पोषण बनाया था जिससे इंसान की जो बॉडी है, जो जिस्म है, वो ट्रांसपेरेंट बन जाता है। ट्रांसपेरेंट ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसे बिल्कुल हम देख सकते हैं, जिसे लाइट पास हो सकती है। और उस साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। वो तजुर्बे के बाद तजुर्बे कर रहा था, लगातार तजुर्बों के बाद उन्होंने ये बिल्कुल ऐसी दवाई बनाई, ऐसी चीज़ बनाई जिससे एक इंसान ट्रांसपेरेंट बनता था, कुड बिकम इनविजिबल। फाइनली ही स्वैल्वड, और लास्ट में उसने खुद निगल लिया सर्टन रेयर ड्रग्स, कुछ ड्रग्स, खास दवाई, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ गिलास। गिलास की तरह उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट बन गई। दो इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज गिलास, लेकिन गिलास की तरह सॉलिड भी थी, गायब नहीं होती थी, वो सॉलिड थी उसकी बॉडी, सिर्फ ट्रांसपेरेंट थी। ट्रांसपेरेंट मीन्स जब वो कपड़े निकालता था उसको कोई देख ही नहीं सकता था, क्योंकि उसकी बॉडी बिल्कुल शीशा थी, लेकिन सॉलिड, ठोस। ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ही वॉज ब्रिलियंट साइंटिस्ट, क्योंकि जो ऐसी चीज़ बना सकता है वो कोई आम साइंटिस्ट नहीं हो सकता है। ही वॉज ब्रिलियंट, बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था। तो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रेदर ए लॉलेस पर्सन, लेकिन उसमें एक कमी थी, वो गैर कानूनी इंसान था, सरकश इंसान था, वो कानून की परवाह नहीं करता था। हिज लैंडलॉर्ड, जो उसका मालिक था, डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम। जहाँ वो पहले रहता था, उस दवा बनाने से पहले, उस एक लैंडलॉर्ड के, एक मालिक के पास, उसने उसको रिमूव करने की कोशिश की इन रिवेंज, और बदले में ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। ग्रिफिन ने पूरे घर को ही आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। अब उसको ये ट्रांसपेरेंट बनने के लिए, ताकि लोग उसको नहीं देख सके, उसको तमाम कपड़े निकालने पड़ते थे, बिल्कुल नंगा उसको घूमना पड़ता था ताकि लोग उसको नहीं देख पाए। He had to remove his clothes, thus it was that he became a homeless wanderer. इसीलिए वो अब बिल्कुल बेघर इंसान बन गया, उसका कोई अपना घर नहीं था, विदाउट क्लोथ्स, कपड़े नहीं थे, विदाउट मनी, पैसा भी नहीं था, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल वो इनविजिबल था, until he happened to sit up in some mud and left footprints as he walked. यह तभी दिखाई देता था, उसके पाँव के निशान तभी दिखाई देते थे जब वो किसी मड में, किसी मिट्टी में, गीली मिट्टी में अपने पाँव रखता था, तो उस पाँव के निशान फिर दिखाई देते थे, वरना वो सूखी ज़मीन पर उसके निशान नहीं पड़ते थे। गीली मिट्टी पर जब वो चलता था तो उसके निशान पड़ते थे as he walked. Now what happens next आगे क्या होता है इस कहानी में, we will read that in next video. Till that, goodbye.